Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now, the special mentions. Only lay. You don't have to read. Please lay your special mention. Mr. G.K. Basan, please lay. Sir, very Just read the important, sir, title 2, and 3 lay. lines we should read, sir, because it has to reach the. You read the title and lay it. 1 minute. I never thought you would suddenly call. Chashma. Mr. Basan just said that I lay in the table. Sir, I'm just looking for. No, I know, I'm looking for the glass, sir. Okay. Sir, the handloom weavers of Tamil Nadu have been reeling under severe economic hardship ever since the outbreak of COVID-19. The cost of the raw silk has increased from 4,000 to 6,000 per kilo for various raw material, for Kora silk to dyeing material. GST is levied from 5% to 18%, sir. I'll complete, sir, 2 lines. The handloom industry provides employment for 50 lakh people across the country, bearing 3 districts. Therefore, 1,200 Thank you. cooperative weaving societies constituting 40% of the handloom industry. The handloom sector, as a result of the pandemic, is on the brink of collapse, sir. In order to give a fillip to the sector, various positive measures have to be taken by both central and state government. At this juncture, sir, I would not be appropriate to enhance the GST on Okay, now you late. And therefore, you need not the whole thing. You need not read the whole thing. Finance Minister to withdraw the proposed increase and hand over silk products totally for GST on the lines of exemption granted to khadi, cotton and silk products, sir. Thank you. So it's laid now. Prashanta Nanda? Not present. Vijay Pal Singh Tomar? माननीय उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ विषय पढ़िए और लिखिए। हाँ, विषय पढ़ रहा हूँ। कौशल विकास के प्रशिक्षण हेतु स्टाफ और स्थान दोनों का जो अभाव है उसके संबंध में मैंने एक ये उल्लेख किया है, इसको मैं सदन के पटल पर। धन्यवाद। श्री महेश पोद्दार। Sir, it's just 4 lines, sir. India is home to the highest incident and prevalence of type 1 diabetes in the world, and it is increasing manifold with each passing year. What is noteworthy is that, sir, people become ineligible for recruitment in several organizations if they suffer from the same. I would request the government to kindly sensitize PSU, the private sector, etc., to recruit more people with type 1 diabetes into their organization and to provide subsidized instrument for their use. Thank you, sir. Sri K.C. Ramurthy, just read the title and lay. Sir, I'll take 2 minutes, sir. It's very important. No. 1 minute, sir. 1 minute. Because it's a very important subject. Read the title. That's enough. Laying is of no use, sir, for me. Sir, online games are It will increasingly go on becoming... record. So you just lay it. I lay it, sir. I lay it, sir. The title and lay it. Sir, it will automatically go. I want to mention the subject, sir. Shall I mention the subject, sir? Yes. Sir, different states have different laws, rules, regulations. As a result, different legal framework in different states. A slew of challenges and risks have emerged in regulating the online games, sir. In view of this, I request the government to enact a model law, circulate the same to all states, so that they can adopt the same and enact similar law in all the states. Thank you, sir. Thank you. Dr. M. Thambudurai. Absent. The next is Tirusi Siva. Yeah. You just read the title and lay it. Thank you. It's laid. Dr. Sonal Mansingh. Absent. Sri Suresh Gopi. You read the title and lay it. Yeah. So this is a request for continuing operations of Bharat Darshan tourist trains and supporting common man's tourism in the country. With your permission, sir, I lay this request on the table. Thank you. Sri P. Wilson. Just read the title and lay it. I lay on the table the special mention regarding fixing of time limits for the governors to act on the bills
passed by the state legislature, and they cannot sit over the bills indefinitely, especially NEET bill. Our governor is delaying it indefinitely. Thank you. Thank you. Dr. V. Sivarasan, not present. Sri Rajendra Gehlot, माननीय आप सभापति सिर्फ जी, विषय पढ़िए और लेकर दीजिए। मैं आपके माध्यम से पंजाब में स्थित रावी, सतलुज एवं व्यास नदियों के भाखड़ नागर बांध के माध्यम से हरिक्या बैराज होते हुए इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए प्रदूषित केमिकल युक्त पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रावी, सतलज, व्यास नदियों का पानी जो राजस्थान के पेयजल तथा सिंचाई के लिए भाखड़ा नागर बांध के माध्यम से हरिक्या बैराज होते हुए इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई में एकमात्र जल का स्रोत है। इस नहर के जल से प्रदूषित होने के कारण क्षेत्र में असाध्य बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। पंजाब के कई औद्योगिक इकाइयों तथा नगरीय सीवरेज प्रदूषित केमिकल युक्त जल नदी में मिलता है। लुधियाना पूरा पढ़ना नहीं है। साहब 1 मिनट आप सुनिए सर, राजस्थान का मामला सुन लिया मैंने आपको, सभापति पर रख दीजिए। एक लाइन में क्या लगता है साहब, पहली बार तो बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। जल केमिकल युक्त जल नदियों में मिलता है। लुधियाना के स्थित बुद्धा नाला प्रदूषित जल इस नदी से प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। पर्यावरण दृष्टि यदि देखा जाए, नदियाँ दूषित और केमिकल युक्त जल से जनजीवन के स्वास्थ्य में हानिकारक है। इन नदियों को प्रदूषित होने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड ने 2018 में फैसला में नदी को प्रदूषित होना माना है। मानकर नियंत्रण करने के लिए पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से सरकार को पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालय को आग्रह करना चाहता हूँ, जनजीवन को हानि से बचाने के लिए पंजाब सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आदेश को निर्देशित करें पालन करने के लिए। धन्यवाद। नाउ श्री कैलाश सोनी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एजेंसी है जो 4 भाषाओं में सैकड़ों समाचार पत्रों को एवं अन्य माध्यमों को प्रतिदिन देश विदेश के प्रमाणित समाचार एवं फोटोग्राफ प्रदान करती है। यूएनआई एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो 6 दशकों से देश की सेवा कर रही है। करीब 1 दशक से अधिक समय से ये एजेंसी एक कारपोरेट लड़ाई के कारण आर्थिक संकट में फंसी है। गैर लाभकारी संस्थान होने के कारण इस संस्थान के शेयरधारकों ने इसे बेसहारा छोड़ दिया है। संस्थान के 500 से अधिक पूर्व एवं मौजूदा कर्मचारी 56 माह से अधिक का वेतन ग्रेच्युटी का बैकलॉग हो गया है। इसके अलावा कई महीनों से इनकी पीएफ जमा नहीं की गई है। प्रत्येक कर्मचारी के 30 से 40 लाख रुपए बकाया है। कर्मचारी के संचालकों ने हाल ही में संपादक सहित 20 से 25 नए कर्मचारी रखे हैं जिनको हर माह वेतन दिया जा रहा है, जबकि पुराने स्थायी कर्मचारियों को केवल 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं जो कानूनन न्यूनतम वेतन से भी कम है। दिल्ली के बाहर विभिन्न शहरों में तैनात कर्मचारियों को यह राशि पर रख दीजिए, आप पूरा पढ़ना नहीं है आपको, से दी जा रही है। एक लाइन बची है केवल। सरकार से आग्रह है कि यह यूएनआई के पूर्व एवं मौजूदा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और हस्तक्षेप करके पीएफ सहित उनकी बकाया राशि का संपूर्ण भुगतान कराए। धन्यवाद। सभापति पर रख दीजिए। हरनाथ सिंह यादव। मैं शायद अंतिम हूं तो मुझे पूरा पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। नहीं, आप टाइटल पढ़िए और सभापति पर रख दीजिए, बाकी रिकॉर्ड में जाएगा। ठीक है। मान्यवर, मैं निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को उनके दावों का भुगतान न करने के संबंध में विशेष उल्लेख के माध्यम से विशेष उल्लेख को सभा पटल पर रखता हूँ। बहुत धन्यवाद। के सोमा प्रसाद, नॉट प्रेजेंट। श्री जवाहर सरकार, नॉट प्रेजेंट। श्री सुशील कुमार मोदी। महोदय, मैं 2 लाइन में केवल अपनी बात कहूंगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए देर इज नो रेगुलेशन इन दिस कंट्री, सो आई वुड अर्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि लाइक पोर्चुगल लॉ दे शुड इनेक्ट अ लॉ टू वर्क फ्रॉम होम।
क्योंकि लोगों को बहुत लंबे समय तक घरों में काम करना पड़ रहा है, उनको इंटरनेट, बिजली का खर्चा, सारी चीज़ों का खर्चा करना पड़ रहा है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। इसमें भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वर्क फ्रॉम होम को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जांगरा। उपसभापति महोदय, गरीब लोगों के लिए सिर्फ 100 शब्द है। मेरे पड़ोसी पर दया की रे, मेरे पर भी कर लीजिए थोड़ी सी। मान्यवर, बिहार के लोहार जनजाति समाज के आरक्षण के संबंध में सिर्फ 100 शब्द है। सिर्फ 100 शब्द। आप बोलोगे इतने में बोल ही दूंगा। मान्यवर, बिहार प्रदेश में 1950 से लोहार जनजाति समाज को आरक्षण मिल रहा था। जातियों की सूची में लोहार व लोहारा समाज लिखा गया, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी उच्चारण में महेंद्र को महेंद्रा, राजेंद्र को राजेंद्रा बोलते थे। इसी प्रकार लोहार को लोहारा भी कहते थे। वर्ष 2006 की संशोधित सूची में केवल लोहारा लिख दिया गया, और बिहार में कोई लोहारा जाति कोई न होने के कारण लोहार जनजाति वर्ग आरक्षण लाभ से वंचित हो गया। भारत सरकार को इस संदर्भ में कई बार प्रतिवेदन दिए गए। आखिर एक्ट 23/2016 से एक्ट 48/2006 को निरस्त करके उसमें संशोधन लोहार शब्द कर दिया गया। इस पर राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग गई, लेकिन जनजातीय मंत्रालय द्वारा आज तक संशोधित शब्द को गजट सूची में नहीं डाला गया, जिस कारण लोहार समाज इतने लंबे समय से आरक्षण लेने से वंचित है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द लोहार शब्द को सूचीबद्ध कर समाज को जनजातीय आरक्षण का लाभ दिया जाए। धन्यवाद। सभापटल पर रख दीजिए। डॉक्टर अमर पटनायक, नॉट प्रेजेंट। नीरज दंगी, नॉट प्रेजेंट। श्री प्रसन्ना आचार्य, not present. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 21st December 2021.